مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے وہ ضرور ملتا ہے۔ صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام اور محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آپ توجہ سے سنتے جائیں، اس لیے کہ مختصر وقت میں مجھے بہت کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو میرے اور آپ کے لیے ایک ہدایت ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم یہ بچے بالکل خاموش ہو جائے، خواتین کی طرف سے بچے کی آواز آ رہی ہے، ان کو خاموش بیٹھا ہے، اور جو سامنے کے بچے آواز آ رہی ہے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے، خاموش ہو جائے رہے تاکہ بات چلتی رہے۔ آپ میں آپ ڈال کے بات سنیں، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، قرآن کریم یہ ایک آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب کوئی نئی کتاب نہیں۔ شریعت بھی آخری ہے، اس کے بعد اب کوئی نئی شریعت نہیں۔ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری پیغمبر ہیں، اب ان کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں۔ قرآن کریم حضور علیہ السلام کے زمانے میں بک بائنڈنگ کی شکل میں نہیں تھا، مجلد جو کتابچے کی شکل میں نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو پھر ایک فتنہ اٹھا جسے مسیلمہ کذاب کہتے ہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ آپ کے جانشین اور خلیفہ بنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جب علم میں یہ بات آئی کہ ایک ناپاک مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرما کر کے جنگ یمامہ کا اعلان کیا۔ یمامہ مدینہ المنورہ سے ریاض میں 1000 کلومیٹر کی دوری پر ایک بستی کا نام ہے۔ تقریباً 1200 صحابہ کرام اس جنگ میں شریک ہوئے۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق نے اس جنگ میں وہ کردار ادا کیا کہ مسیلمہ کذاب جو فتنہ جس بل سے باہر نکلا تھا اسی بل میں اس کو ڈھکیل دیا ہے، اور اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام نے شہادت کا مقام پایا۔ کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی یا کوئی ایسا سریہ نہیں ہوا جس میں اتنے صحابہ کثیر تعداد میں شہید ہوئے ہو۔ یہ صرف ایک جنگ ایسی ہے کہ جس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، جس میں سے 700 صحابہ صرف قراء کرام تھے، حافظ قرآن تھے، حاملین قرآن تھے۔ پھر بات آئی کہ اب تو قرآن محفوظ کیسے رہ سکتا ہے کہ قراء کرام جب ایسے ہی شہید ہوتے جائیں گے تو پھر یہ امت تک قرآن کریم پہنچے گا کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور اعلان فرمایا کہ اے مقدس صحابہ کی جماعت، اب ہمیں جمع قرآن کا اہتمام کرنا ہوگا کہ جس کے پاس جو بھی کچھ لکھا ہوا ہو، چاہے وہ
घर पर हो, चाहे वो दरख्तों के पत्ते पर हो या वो चमड़े पर लिखा हो या किसी को जबानी अगर याद हो, तो वो जो हिस्सा जिसके पास मौजूद है वो हमारे पास ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस कमेटी का सरबराह हजरत ज़ैद इब्ने साबित को बनाया, हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाहु अन्हु इन दोनों को बनाया। तो मेरे दोस्तों, तमाम सहाबा ने जमे कुरानी का ऐलान फरमाने के बाद कुरान को जमा करना शुरू किया। फिर उसके बाद दो शर्तें लगी, जिसमें से एक शर्त ये थी कि जिसके पास भी जो मुसहफ होगा, कुरान करीम की जो आयत होगी, वो पहले किसी हाफिज से चेक कराएगा। दूसरी शर्त ये होगी कि जो कुरान करीम की आयत उसके पास मौजूद होगी, तो कम अज कम वस्तशहिदू शहीदैन बिर्रिजालिकुम के हुक्म के मुताबिक दो गवाह उसके पास होना चाहिए। कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इस आयत करीमा की तिलावत फरमा रहे थे, तो आपने सुनी थी, आपके सामने मौजूद गवाह कितने थे? तो फिर कम अज कम दो गवाह मौजूद होने होंगे। ये दो शर्तें कायम हो गई। मेरे दोस्तों, किसी के पास दरख्त के पत्तों पर लिखा हुआ था, उसने भी हाजिर कर दिया। किसी के पास चमड़े पर लिखा हुआ था, उसने भी हाजिर कर दिया। हाँ, किसी के पास पत्थर पर लिखा हुआ था, उसने भी हाजिर कर दिया। लिहाजा पूरा कुरान करीम अल्हम्दु की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान करीम जमा हो गया। लेकिन दो आयतें रह गई कि जिसके मुताल्लिक सिर्फ एक गवाह मौजूद थे, दूसरे गवाह, लिहाजा शहादत का निसाब मुकम्मल नहीं था। एक वो आयत सूरह तौबा की आखिरी आयत, फइन तवल्लू फकुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। ये पहली आयत थी जिसके मुताल्लिक सिर्फ एक गवाह मौजूद थे, दूसरे गवाह मौजूद नहीं थे। और दूसरी वो आयत थी सूरह अहज़ाब, सूरत नंबर 33, आयत नंबर 23, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा हक़्क़हु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। ये दो आयत ऐसी थी कि इनके मुताबिक सिर्फ एक गवाह मौजूद थे, दूसरे गवाह मौजूद नहीं थे। सहाबा हैरान हो गए कि अब किया क्या गया है। दो शर्तें वो इत्तेफाकी तमाम सहाबा और अहले बैत के मशवरे से तय करार पाई है। अब किया क्या जाए? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, या अबा बकर सिद्दीक, हमारे दरमियान एक ऐसे सहाबी मौजूद है जिनका नाम हुज़ैफ़ा इब्न साबित अल अंसारी अल मदनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इनकी शहादत दो के बराबर है। इनकी सिर्फ अकेले की शहादत दो के बराबर है। सहाबा ने कहा वो कैसे? फिर फरमाया, क्या वो आपको एक अजीम वाक़िया जो यहूदी के साथ पेश आया था, जो यहूदी के साथ मामला हुआ था, हुजूर का वो वाक़िया याद नहीं है? इस वाक़िए को इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हुम्माम ने अपनी किताब अल मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में इस किताबुल क़ज़ाया अन्नल यहूदिय्य वक़ादा इला रसूलिल्लाह के तहत लिखा है कि एक यहूदी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पास आया और अपने कर्ज का मुतालबा करने लगा कि आप मेरा कर्ज लौटाओ। मेरे दोस्तों, हुजूर ने उसे कर्ज को लौटा दिया था। फरमाने लगे, हुजूर इन्नी कद क़ज़ैतु, और यहूदी मैं तेरा कर्ज को तुझको अदा कर चुका, तू कर्ज का मुतालबा कैसे कर सकता है? तो उस जगह पर मौजूद हुजूर के साथ यही सहाबी हुज़ैफ़ा इब्न साबित अल अंसारी अल मदनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां मौजूद थे। उन्होंने फरमाया कि उस यहूदी ने कहा कि ए रसूलुल्लाह, आपके पास कोई गवाह मौजूद है कि मैंने कर्ज अदा कर दिया? आपके पास कोई गवाह मौजूद है? हजरत हुज़ैफ़ा इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपका गवाह हूं। या रसूल अल्लाह, मैं आपका गवाह हूं। इन्नी अशहदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कज़ा, और यहूदी हुजूर तेरा कर्ज अदा कर चुके। वो यहूदी चला गया। उसके बाद मेरे पाक पैगंबर अलैहि तहियतु व तस्लीम ने फरमाया, एक हुज़ैफ़ा बिन साबित, तुमने गवाही कैसे दी जबकि तुमने ये मामला होते हुए हमें तो नहीं देखा?
मगर देखिए तुमने शहादत और गवाही कैसे दे दी है। हजरत खुज़ैमा बिन साबित ने फरमाया, ए अल्लाह के पैगंबर, आपने जब खुदा की वहदानियत को बयान किया, हमने दिन देके खुदा की वहदानियत की शहादत दी। आपने रिसालत का दावा किया, हमने दिन देके आपको रसूल तस्लीम किया। आपने कयामत का बयान किया, हमने दिन देके कयामत के दिन का यकीन किया। आपने जो है जन्नत जहन्नम का तज़किरा किया, हमने इनको भी नहीं देखा। हमने दिन देके इन दोनों की शहादत दी। हमने जिब्राइल को आपके पास आते हुए और कुरान करीम लाते हुए नहीं देखा। हमने दिन देके इस पर यकीन किया, शहादत दी। हमने जो है ये रब्बुल तालीम और शरीफुल अखलाम को नहीं देखा। जब भी हमने जो है शहादत बगैर दे दी है, तो ये इतनी बड़ी चीज है। हमने इनकी शहादत, इनकी गवाही दिन देके दी है। तो या रसूल अल्लाह, जब इतनी सारी बातों की गवाही हमने दिन देके दी है, ये तो एक छोटा सा मामला है। या रसूल अल्लाह, जब आपने कह दिया कि ए यहूदी, मैंने तेरा कर्ज अदा कर दिया, तो या रसूल अल्लाह, खुदा की जात की कसम खा के कह सकता हूं, हकीकत में आपने उसका कर्ज अदा कर दिया। मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवाह बनाया गया। फिर ये दो आयत इस एडिशन में ऐड कर दी गई। ये दो आयत कि जो गवाह है अकेले खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इस मौके पर हुज़ूर ने फरमाया, या खुज़ैमा बिन साबित अंत ज़ू शहादतैन, खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले किसी की गवाही भी वो दो के बराबर है। अंत ज़ू शहादतैन, अकेले वो किसी की गवाही दे तो दो के बराबर है। मेरे दोस्तों, ये इस तरीके से कुरान करीम हम तक पहुंचा है। ये कोई ऐसे ही नहीं पहुंच गया। इसलिए मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, अपनी औलाद को इंजीनियर जरूर बनाओ, अपनी औलाद को एडवोकेट और एलएलबी कोर्स जरूर कराओ, अपनी औलाद को डॉक्टर जरूर बनाओ, अपनी औलाद को दुनिया का एजुकेशन और असली तालीम जरूर कराओ। इसकी मुखालफत नहीं करता। क्यों? इसलिए कि दुनिया की जरूरत है, लेकिन अपनी औलाद को हाफिज कुरान भी बनाओ, दीनी तालीम उनको पढ़ाओ, इसलिए कि वो दुनिया की भी जरूरत है, आखिरत की भी जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाएंगे तो दुनिया में भी अल्लाह कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे। बाज लोग जो है सवाल करते हैं कि हमारी औलाद हाफिज कुरान बनेगी तो उसमें रिस्क कहां से मिलेगा, खाएंगी कहां से? मेरे दोस्तों, जितना मौलवी खाते हैं, गैर मौलवी नहीं खाते। अल्लाह पाक इनको चैन से खिलाते हैं और इज्जत वाली रोटी खिलाते हैं, एहतराम वाला रिस्क खिलाते हैं। इसलिए तमाम बातें जो इसको पसे पुष्ट डालकर अपनी औलाद को दिन पढ़ाओ। खुदा की कसम खा के कह सकता हूं, क़यामत के दिन ऐसा मकाम अल्लाह उनकी वजह से उनके वालिदैन को अता फरमाएंगे कि जो हमारी आंख ने ना देखा होगा, ना कानों ने सुना होगा। इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करके जा रहा हूं। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे, कि खुद इस जहां के जर्रे जर्रे को चमकना सिखा रहा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।